अभी कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें ओके, सो लेट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस है ना ऑल मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस, देन वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज एंड इंटर रिलेशंस। ठीक है। सो फर्स्ट है ना वी वर डिस्कसिंग x1 x2 xn है ना, this be a sequence of random variables है ना। सो वी से xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो इफ एंड ओनली इफ limit n tends to infinity f of xn, x is equal to fx of x at all points where small मतलब fx at x is continuous function। नाउ नेक्स्ट थिंग है ना, एक बार डेफिनेशन सबका देख लेते हैं, देन हम लोग आगे और प्रॉपर्टीज और इंटर रिलेशंस देखेंगे। सेकेंड इज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन आरिथमीन एंड कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली है ना। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो लास्ट क्लास में ओनली हमने कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, उसको बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखे थे। मेन डेफिनेशन हर जगह लिखा मिल जाएगा आपको, यू कैन इजीली रीड डेफिनेशन, बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू सॉल्व प्रॉब्लम्स है ना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, बिकॉज है ना जस्ट डेफिनेशन रीड करना डजेंट मीन यू अंडरस्टैंड, तो आपको समझना पड़ेगा ठीक से। सो अभी के लिए चलो मैं ये स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस। तो start convergence in probability. So how do you define convergence in probability? देखो, तो अभी मैं डिफाइन कर देता हूं जस्ट। convergence in probability, so again let x1 x2 and dot 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 be a sequence of random variable, yeah, है ना, and we say that so जो nth टर्म है ना, this sequence converges
So a sequence xn of random variables converges in probability to a random variable x. So a sequence xn of random variable converges in probability to a random variable x if and only if क्या होगा डेफिनेशन? सो एनीवन रिमेंबर? सो इसका क्या डेफिनेशन है कि when we say, or that is we write xn converges in probability to x if and only if limit n tends to infinity probability mod xn minus x less than epsilon. This probability is 1 for all epsilon more than 0. Or you can also say, or है ना, that is you can also say the same thing in other way, that limit n tends to infinity probability mod xn minus x more than equal to epsilon. This is 0 for all epsilon more than 0. Okay, now ठीक है, you understand this definition. So what does they mean? इसका क्या मतलब है ना, कि क्या कहना चाह रहा है ये? So actually difference of x क्या करता है? Random variable is a function that assign each outcome of sample space to a real number, right? So xn is also a random variable, x is also a random variable. So corresponding to each outcome of sample space, the value assigned to xn and x will have difference less than epsilon and the probability is 1, है ना? So this is the definition of convergence in probability. Actually इसका मतलब ये है, so when we write probability mod xn minus x less than epsilon, so actually we mean that omega belongs to capital Omega such that xn omega minus x omega is less than epsilon actually. So those outcome of sample space which corresponds the difference है ना, and this probability should be 1, as we say, as n tends to infinity, as n is large. So this number converges to 1 as n tends to infinity. You can also say this in other word. So ये तो डेफिनेशन है. कुछ क्वेश्चंस करके देखो इस पे. जैसे अभी के लिए मैं अगर ऐसा लिखता हूं कि लेट x1 x2 डॉट 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 है ना, या इतना ना लिख के जस्ट xn be a sequence of random variable that has a distribution standard Cauchy. Let's say standard Cauchy 0 1. I assume 0 1. So where will it converge in probability 2? अच्छा, या मैं ऐसा लिखूं कि ये छोड़ो, अभी के लिए थोड़ा आसान सा एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से इट इज बर्नौली 1/n, मान लो ऐसा है. सो इट इज बर्नौली 1/n. देन ओके, फर्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैन वी से xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू
so xn converges in probability to 0. दिस इज अ क्वेश्चन, कैन वी से दिस? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि लेट्स से अभी के लिए फॉर द पॉइंट टाइम बीइंग xn converges in distribution to x, so what is distribution of x? ये हमने कल डिस्कस किया था. So suppose I take xn as a Bernoulli 1 by n. xn is a sequence of random variable. xn is the nth term in the sequence. ठीक है? So we have a sequence of random variable. xn is the nth term. So nth random variable xn has a distribution Bernoulli 1 by n. तो ये कल हमने डिस्कस किया था. So xn converges in distribution to x. Then what is distribution of x? ये क्या आया था ये बताइए क्विकली आप लोग पहले, देन हम डिसाइड करेंगे. ये क्या आया था कल? डिजेनरेट एट 0. ओके, सो दिस वाज डिजेनरेट एट 0. सो ये आपका आ रहा था डिजेनरेट एट 0, तो मतलब कांस्टेंट 0 हो गया. सो यू कैन से कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0. ओके, बिकॉज इट इज डिजेनरेट एट 0, मतलब 0 पे फुल मास है ना, तो डिजेनरेट एट 0. सो नाउ क्वेश्चन इज कि xn विल आल्सो कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0. तो जिन लोगों को थ्योरम पता होगा दे विल से यस, बट हम लोग डेफिनेशन यूज करते हैं, तो है ना. इफ यू नो द थ्योरम दैट xn converges in distribution to some constant or degenerate random variable, then it will surely converge in probability also. तो थ्योरम के हिसाब से तो ओके है, बट अभी हम डेफिनेशन को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं. सो लेट्स जस्टिफाई दिस डेफिनेशन. इससे आप ट्राई करके बताओ कि कैन वी से xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0. तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से दिस प्रोबेबिलिटी 1 आएगी या और यू फाइंड दिस, क्या ये 0 आएगी. सो आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये प्रोबेबिलिटी 0 या 1 आएगी, ये चेक करना है. तो कौन सा स्टार्ट करें? यहीं से स्टार्ट करें, ये वाला स्टार्ट कर सकते हैं, और यू कैन स्टार्ट दिस एनीथिंग, है ना. तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. चलो ये फाइंड करके देखते हैं. तो अब मैं बोल रहा हूँ xn कन्वर्ज टू 0. तो नाउ यू चेक कि ये प्रोबेबिलिटी 1 आएगी क्या, ये चेक करना है आपको. देखिए, तो यहाँ से मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा. सो आई नीड टू फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 है ना, x इज 0, डिजेनरेट एट 0, तो लेस देन एप्सिलॉन. इसको प्रोबेबिलिटी निकाल के देखते हैं क्या आती है. so this will reduce to limit n tends to infinity probability mod xn mod xn लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी यहां से आ जाएगा xn माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन. ठीक है, और xn बिटवीन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन. अब ये प्रॉपर्टी निकालो. देखो, तो xn क्या था, बर्नौली था. तो xn हैज सपोर्ट 0 1. xn की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, है ना. तो xn का जो सपोर्ट है या तो वो 0 है या 1 है. तो तो फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 xn की कौन सी वैल्यू इसमें आएगी, ओनली 0 आएगी, बिकॉज इट हैज सपोर्ट 0 1. तो फॉर वट एवर एप्सिलॉन यू चूज, पॉजिटिव एप्सिलॉन कुछ भी ले लो, है ना. फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0, है ना. फॉर एवरी एप्सिलॉन इसमें क्या आएगा,
तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, xn के पास 2 पॉसिबल वैल्यूज है, 0 और 1, तो इसमें क्या होगा कि xn की सिर्फ 0 वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई करेगी, और xn बराबर 0 क्या आएगी, सो ये बर्नौली p है, p की वैल्यू 1/n है, एंड p जो होता है प्रोबेबिलिटी एट सक्सेस होता है, तो फेलियर पे क्या प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस p, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एट 0, तो प्रोबेबिलिटी एट 0 ये प्रोबेबिलिटी एट 1 है xn में, तो प्रोबेबिलिटी एट 0 1 माइनस 1/n, सो 1 माइनस 1/n, और ये n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो तो 1 आ गई. So for any epsilon more than 0, this probability is equal to 1, and this proves, है ना, definition से हमने justify किया, so therefore yes, xn converges in probability to 0. ठीक है, देखिए किसी को डाउट है इसमें, अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क. Hello, sir. Yes. Sir, limit n tends to infinity probability of minus epsilon less than epsilon. After that, so how you got xn equal to 0? Yes. So what is distribution of xn? Bernoulli. So what is support of xn? 0, 1. 0, 1. So for any epsilon more than 0, whatever epsilon you choose, so what values will always fall into this interval? Any. Yeah, whatever epsilon you choose, whether you can take 1 upon 1 trillion or you can choose epsilon as a trillion. So still, for any epsilon, for every epsilon, which value will fall into this interval? Epsilon is a positive real number. Okay. So you 0 can will, take, हाँ, I can take 0. Suppose if epsilon is 2, okay. then it will take both 0 and 1. But it is not for the one epsilon, for every epsilon. So you take 2, or like for every positive real number it must hold. So if it holds for 2, will it hold for 1/2? No. No, so that you cannot consider. This is not for the particular value of epsilon. It is for every epsilon. Okay. So whatever epsilon we choose, it must satisfy. Okay. Then we can say. So for every epsilon, I choose any epsilon, this should be correct. So this is 0 will be always in the for any epsilon, for every epsilon. That's why we are writing this. सर सुनाई दे रहा है? हाँ 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 सर बोल रहा है इप्सिलॉन मैंने चूज कर लिया 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन x एंड लेस देन 2. तो तभी तो 2 पॉइंट ले सकते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, तभी भी तो 1 आ जाएगा. 1 आ जाएगा, बट फिक्स एप्सिलॉन के लिए नहीं, हमें वैसे चूज करना है हर एप्सिलॉन के लिए. वैसे तो ठीक है, आ तो जाएगा, इट्स फाइन, तब भी 1 ही आएगा, आएगा तो 1 ही, बट उस केस में फिर डायरेक्टली 1 आ जाएगा, है ना. बट ये कि यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट फॉर 2, फॉर एवरी एप्सिलॉन. जब प्रूव करते हैं, वी आर राइटिंग प्रूफ ना, तो इट मस्ट होल्ड फॉर एवरी एप्सिलॉन, नॉट फॉर जस्ट वन एप्सिलॉन एंड नॉट फॉर अदर एप्सिलॉन, ऐसा नहीं होना चाहिए. So it should hold for the any epsilon you choose, whether you choose 2 or 1/2 or 1 by anything. It must hold for all. And now we write for all epsilon. We don't write for epsilon is equal to 2. We write here for all epsilon more than 0. For all. So whatever I choose, it will make it correct. है ना, जब 2 रख के आपने डायरेक्टली कर दिया 0 1 आ गया, मैं 1/2 लूंगा 0 आएगा, तो फिर यहाँ कंफ्यूजन होगा कि लेना क्या है. So whatever you take for every epsilon it must hold. So it's not 2 only. You have to think of all epsilon more than 0.
एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कल हमने लिखा था, अभी एक ट्राई करो कि x1 x2 xn इट इज IID रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म 0 1 से था। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमने कल आई थिंक प्रूव किए थे कि दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, राइट? ये भी 0 पे आया था। क्या आया था कल? डिजेनरेट एट 0। देखो, सो हाँ सर 0 पे आए थे। 0 पे आया था। तो हाँ अभी के लिए चेक करना है क्या ये कन्वर्ट, मतलब just होगा थी, बस प्रूफ करके देखो। सो कैन यू प्रूफ xn? ये तो ओके है। सो आपको ये बताना है कि क्या xn और x1 द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0। प्रूफ लिख कर देखो डेफिनेशन से, देन यू विल अंडरस्टैंड डेफिनेशन। एक्चुअली ये होगा, बाकी थ्योरम से तो वही जाएगा। तो ये हमने कल प्रूव किए थे कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0। नाउ यू प्रूव फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0। ये जरा ट्राई करके बताइए। तो सिमिलर वे में आपको ट्राई करना होगा, यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अगर ये करेक्ट होगा, सो वी हैव टू प्रूव दैट फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 या फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन दिस शुड बी। अब ये निकालो क्या आता है, अगर 1 आना चाहिए। फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 0, क्योंकि x 0 यहाँ पे, दैट्स लेस देन एप्सिलॉन। यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, बताओ किसके इक्वल, क्या ये 1 के इक्वल आएगी? इज इट 1? तो ये आपको चेक करना है, आएगी? ओके Yes. सर ये 1 प्लस एप्सिलॉन रेज टू एन माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन रेज टू एन तक आएगा, इसका लिमिट लेना पड़ेगा ना? हाँ, ट्राई कीजिए, लिमिट क्या आएगा? तो ये तो कुछ ऐसा आ गया ना, तो सिंपल है वैसे ही, जैसे सिंपली आप कर सकते हैं इसको। सो लिमिट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मॉड है ना, तो ये माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन,
तो आप ऐसा कर सकते हैं माइनस एप्साइलॉन टू प्लस एप्साइलॉन में यू जस्ट इंटीग्रेट इट्स पीडीएफ, या ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना, सीडीएफ भी आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट, यू कैन यूज द सीडीएफ आल्सो, है ना, यही तो है। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, अगर चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट एप्सिलॉन, CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट Minus- माइनस एप्सिलॉन। यही फॉर्मूला हमने देखा है कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑन इंटरवल यूजिंग CDF। तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इंटीग्रेट कर लो PDF को, वो भी एक तरीका है ना। वन वे इज दिस, अदर वे इज यू इंटीग्रेट योर PDF। सो इस तरह से कर सकते हैं। एंड यहाँ से अगर आप निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का CDF, हमने कल लिखा था फॉर्मूला, जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF फॉर्मूला है 1 - 1 जो पॉपुलेशन का CDF है वो लिख लीजिए आप। तो यहाँ तो x ही है वो, क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 है, इसकी पावर n होती है। और ये कब होती है, जब आपके पास x की वैल्यू 0 से 1 में है। 0 व्हेन x इज लेस देन 0, 1 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 1। तो ये CDF है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। तो यूज दिस। तो आप जब इसको यूज करेंगे सो क्या आएगा, तो यहाँ जो एप्सिलॉन है ये तो 0 से 1 के बीच है, मतलब एप्सिलॉन मोर देन 0 है। अच्छा, अब यहाँ में एप्सिलॉन अगर 0 से 1 के बीच लेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा, बाकी 1 आ जाएगा। एप्सिलॉन अगर 1 से ज़्यादा ले लेंगे तो 1 डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं तो वैसे भी 1 आएगा, है ना। तो यू चूज एप्सिलॉन मोर देन 1 और टेक एप्सिलॉन, मतलब अलग अलग आप कर सकते हो प्रोसेस, कि वंस यू चूज एनी एप्सिलॉन बिटवीन 0 एंड 1, तो जब 0 से 1 के बीच एप्सिलॉन लोगे तो ये आएगा 1 - 1 - एप्सिलॉन की पावर n, और जब 1 से ज़्यादा लोगे डायरेक्टली 1 आ जाएगी, ये है, ठीक है। और यहाँ तो माइनस एप्सिलॉन हमेशा नेगेटिव होना है, तो ये तो हमेशा 0 रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लिमिट CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट एप्सिलॉन, और अगेन मैं कह रहा हूँ कि CDF अगर एप्सिलॉन 0 1 है ना, फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 होना चाहिए। सो इफ इट इज बिटवीन 0 एंड 1 देन 1 - 1 में सेल्फ पावर 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन 1, तो पावर n लोगे, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो वो 0 हो जाएगी, 1 - 0 1 ही आएगी। अगर 1 से ज़्यादा एप्सिलॉन तो 1 आएगी। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 यू मस्ट गेट यूनिक वैल्यू 1, तो वो आएगा हमेशा, ठीक है ना। सो अच्छा, वहाँ जो वो लोग कह रहे थे तो उसमें वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो फॉर एनी एप्सिलॉन वैल्यू शुड बी दिस। अच्छा, वहाँ पे कह रहे, आप वही कहना चाह रहे हैं सौरदीप, है ना, कि वट एवर एप्सिलॉन यू चूज वैल्यू 1 ही आएगी, बट फॉर ऑल एप्सिलॉन इज मस्ट होल्ड, है ना, ये चीज़ है। ठीक है सर। हाँ, तो सेम ही ठीक है ना, वही चीज़ सेम है। सो फॉर ऑल एप्सिलॉन इट विल गिव यू 1, तो ये 1 आएगा फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0। सो आप कोई भी एप्सिलॉन ले लो मोर देन 0 है ना, 1 ही आएगी। तो अगेन इट प्रूव्स दैट, है ना। सो ये प्रूफ हो गया, तो ऐसा है। तो इस तरह से आप डेफिनेशन से चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं कि दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू इन प्रोबेबिलिटी टू 0। तो ये हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जेंस इन, क्या लिखते हैं, आरएथ मीन, कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन या आरएथ मोमेंट। तो कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन, तो इसका क्या डेफिनेशन है, कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन का। सो हाउ डू यू डिफाइन कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन, सिमिलर ही होगा बट थोड़ा एक्सपेक्टेशन के टर्म में आएगा ना, यहाँ मीन आ गया। है जी। सो इफ यू राइट द डेफिनेशन, सो यहाँ से आएगा, सर इसमें जो भी लिखा हो,
a sequence of random variable, a sequence xn of random variable converges in rth mean to a random variable x, और दैट इज वी राइट एक्स एन कन्वर्जेस, है ना, कहीं जस्ट आर लिखा रहता है, कहीं एल आर लिखा रहता है उस तरह से, तो ऐसा लिखता हूँ आर एथ मीन टू एक्स, जहाँ पे आर जो है ना, वेयर आर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर. सो एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन है ना आर एथ मीन इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, लिमिट n tends to infinity expectation of mod xn minus x raised to power r, this must be 0, यही ना. सो कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है इसमें. रेस्ट्रिक्शन इन्होंने क्या लगाया कि rth मोमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, e ऑफ mod x minus r शुड बी फाइनाइट, है ना. यहाँ लगाता है कि पहली चीज से इन्होंने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, पहली बात ये rth मोमेंट ये फाइनाइट होने चाहिए एंड ऐसा होने चाहिए, है ना. ये वीगर वादगी में ये डेफिनेशन लिख रखा है कि xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल सच दैट e ऑफ xn रेज़्ड टू पावर r इज फाइनाइट, और पहले बता रखा है कि xn इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल सच दैट, है ना. एक तो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो यहाँ एक तो रेस्ट्रिक्शन था कि r मोर देन 0 होगा, और ये भी बता रखा है e ऑफ xn की पावर r जो है ना, दिस इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब ये फाइनाइट होने चाहिए. यहाँ पे mod x की पावर r फाइनाइट होनी चाहिए, और दिस लिमिट e ऑफ xn माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर r मस्ट बी 0. इसमें जनरली r को हम 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक मीन, या ऐसे बोलते हैं क्या सेकेंड मीन, ये जस्ट उसको लिखते हैं हम लोग क्या टर्म है, जनरल टर्म, स्क्वायर, मीन स्क्वायर. तो जैसे r को अगर 2 लिख देंगे इसी में, तो क्या हो जाएगा, वी से xn कन्वर्जेस टू x इफ एंड ओनली इफ, मेनली ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन मॉड xn माइनस एक्स होल स्क्वायर इज 0, ये आ जाएगा. नाउ इसमें एक एग्जांपल लिखता हूं, आप इसको वेरीफाई करके देखो क्या आएगा ना. मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस इस तरह का वर्ड यूज करता है. ओके जैसे सेम ही क्वेश्चन है, अभी के लिए मैं वो क्वेश्चन ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना. सो दिस इज द कन्वर्जेंस इन rth मीन, एंड बाकी मैं थ्योरम्स आगे लिखाऊंगा. तो एक एग्जांपल इसका देखते हैं. एग्जांपल इज, अगर पिछला वाला एग्जांपल ही कंटिन्यू करें तो क्या होगा, इफ आई आस्क यू कि क्या ये जो क्वेश्चन नंबर अभी के लिए जो भी है, मान लो थर्ड है, कि लेट x1 x2 xn इट इज अ रैंडम सैंपल, या जैसे IID रैंडम वेरिएबल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 1, तो अभी जस्ट डेफिनेशन आप जस्टिफाई करो. तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जेस इन rth मीन के बजाय अभी आप चलो 2 में चेक कर लो, है ना. मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस 2 0, अच्छा ये 0 पे ही लिख रहे थे ना, तो हमने इसमें प्रूव किया कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन से. बाकी थ्योरम लिखा दूंगा, थ्योरम से ऐसे ही क्वेश्चंस. तो एंट्रेंस में आपको ये सब डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा. मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरम के हेल्प से हो जाएगा. ये अभी चूंकि सीखना है, कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, तो उसके लिए आप ट्राई करके देखो डेफिनेशन से. तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जेस इन क्वाड्रेटिक मीन टू या मीन स्क्वायर टू 0, नॉट क्वाड्रेटिक, है ना, मीन स्क्वायर टू 0, या सेकेंड, है ना, मीन टू 0. rth मीन लिख रहे थे ना. तो इसका मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको, सो यू नीड टू प्रूव हेयर दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 0 स्क्वायर, इसका जो मीन आएगा दैट विल बी 0.
ये आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेशन यही था ना, rth मीन लिखेंगे तो r लिख देंगे, वो भी चल जाएगा, यू कैन राइट। ये तो फाइनाइट चेक कर लेंगे, वो तो वहाँ से पता चल जाएगा। सो यू अप्लाई दिस, देखो यहाँ से क्या होगा। अच्छा, चूंकि हमारे पास यूनिफॉर्म 0 1 है तो ईच एक्सआई हैज सपोर्ट 0 1, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट भी 0 1 ही होगा, तो वैसे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एक्सपेक्टेशन ये बचेगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का स्क्वायर, और ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसमें तो कोई मॉड का रोल रहेगा नहीं। अब ये कैसे निकालेंगे आप लोग, तो ये तो सिंपल है, वी हैव द पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो उसके पीडीएफ की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो क्या आएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फर्स्ट यहाँ पे x स्क्वायर इंटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये हो जाएगा पीडीएफ dx, और ये 0 से 1 होगा सपोर्ट इसका, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, नाउ यू राइट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो ये होता है n इंटू 1 माइनस, कितना आएगा, सैंपल साइज कितना लिया हमने, n लिया हुआ है, तो 1 माइनस x की पावर, हम लोग पीडीएफ निकाल रहे हैं ना, एक मिनट, तो पीडीएफ में डिफरेंशिएट करेंगे तो, है ना, सीडीएफ नहीं लिख रहे हैं, पीडीएफ लिख रहे हैं, सीडीएफ में था 1 माइनस है ना, सीडीएफ की पावर n, तो डिफरेंशिएट करते हो तो आ जाता है 1 माइनस सीडीएफ इसकी पावर n-1 इंटू पीडीएफ, जो एक्चुअल पॉपुलेशन का पीडीएफ है, यहाँ पॉपुलेशन का सीडीएफ dx, यही आएगा। तो अभी मैंने क्या लिखे हैं, ये वाला क्वांटिटी चेक कर लीजिए आप, है ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यही पीडीएफ आएगा। सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये तो आसान है दिखाना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 से 1, अब ये n बाहर रखो अभी, और यहाँ पे है x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, तो वैसे तो इंटीग्रेट करोगे टाइम लगेगा बाई पार्ट से, या पूरा ओपन करना पड़ेगा आपको, तो पॉलिनोमियल में हो जाएगा, इससे जब बीटा से कर लेते, बीटा फर्स्ट काइंड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, बीटा में कन्वर्ट कर लो, क्या होगा ये, सो कन्वर्ट इनटू बीटा इंटीग्रल, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, और ये बीटा में 3, n होगा, चेक कर लीजिए। यस सर। तो बीटा इंटीग्रल 3, n, ओपन कर दीजिए, गामा के टर्म में आ जाएगा ये, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू, तो ये हो जाएगा गामा 3 विच इज़ 2 फैक्टोरियल, गामा n विच इज़ n-1 फैक्टोरियल अपॉन गामा 3 प्लस n, सो विच इज़ n प्लस 2 फैक्टोरियल। अब आप चेक कीजिए इसकी लिमिट क्या आएगी, विल इट बी 0, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है ना, जब आप कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, आएगा जी, है ना, बिकॉज आप इजीली कर सकते हैं इसको कैलकुलेट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जैसे 2 फैक्टोरियल 2 हो गया n, और वहाँ n फैक्ट कट जाएगा, नीचे फिर ब्रेक करेंगे आप, सो n प्लस 2 n प्लस 1 n, और n-1 कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ n-1 फैक्टोरियल था, यहाँ भी n-1 फैक्टोरियल होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ n भी कैंसिल हो गया, तो बचा गया ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो 0 आ गया। तो ये जस्ट हम लोग डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहे थे कि जो डेफिनेशन कह रहा है, अदरवाइज थ्योरम से ही सब डायरेक्टली आ जाएगा, सो वी वर जस्ट, है ना, वेरीफाई कर रहे थे डेफिनेशन को। अवनीश आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है एक्चुअली, बहुत स्लो आ रही है, तो मैं सुन नहीं पाता हूँ एक्चुअली, ठीक है। सो सर ये बीटा 3, n कैसे लिया आपने, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, तो इसके लिए आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, है ना,
तो इसके लिए थोड़ा सा अपना लेवल आपको घटाना पड़ेगा, बच्चों वाली चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जैम वाली, ताकि आपको ये बीटा समझ आए। पीडीएफ ऑफ बीटा फर्स्ट काइंड। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, अगर पीडीएफ आपको याद है वो भी ठीक है, नहीं तो बीटा इंटीग्रल पे चले जाओ। तो आपको है ना बीटा पढ़ना, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ा है उससे भी हो जाएगा, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं, पीडीएफ 1 होता है, और नहीं तो बीटा इंटीग्रल, ये सब तो पता होना चाहिए। देखो जैसे 0 to 1 x की पावर अल्फा -1, इसलिए थोड़े से बेसिक्स भी रिवाइज करने पड़ेंगे। तो ये होगा बीटा इंटीग्रल अल्फा कॉमा बीटा, जो कि इक्वल आता है गामा अल्फा गामा बीटा अपॉन गामा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा यहाँ फिक्स नंबर है, और दिस एग्जिस्ट फॉर अल्फा मोर देन 0 बीटा मोर देन 0, ये होता है। दूसरा यही चीज़ें इसके इक्वल, यही चीज़ें इक्वल आती हैं, सेम चीज़ ये भी इक्वल आएगी 0 से इन्फिनिटी, जो बीटा सेकेंड काइंड आप लोग जानते हो, है ना, तो ये सेम ही होता है, ये इसके इक्वल ही आएगा, ये तीन सब इक्वल ही होंगे, तो इसकी वैल्यू भी वही आएगी, बीटा अल्फा बीटा। और ये जो गामा होता है ये क्या होता है, तो गामा अल्फा होता है 0 to इन्फिनिटी x की पावर अल्फा -1 e की पावर -x dx। तो कई बार ये इंटीग्रल आ जाएगा, तो बाई पार्ट बार बार लगाने के बजाय आप ये यूज़ कर लो, इसी से गामा डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 0 से इन्फिनिटी आप x की पावर अल्फा माइनस बीटा x dx, तो ये हो जाएगा गामा अल्फा अपॉन बीटा की पावर अल्फा, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। और गामा के बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग जानते ही हैं, गामा n इज n-1 फैक्टोरियल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो जाता है। गामा हाफ की अगर जरूरत पड़ती है तो ये आप याद रख सकते हैं, दैट विल बी √π। तो अभी हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ऐसा था तो ऐसा लिखा है, कंपेयर किया हमने, ठीक है, तो इससे आपका ऐसा आ गया। तो प्रूव कर रहे थे, जैसे हम लोग प्रूव कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जेस इन क्वाड्रेटिक मीन टू 0, या है ना क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक मीन, बार बोल देता हूँ ना, मीन स्क्वायर टू 0, या मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस बोल दो, या सेकेंड मीन टू 0, है ना, हमने आरथ मीन लिखा है तो सेकेंड मीन टू 0। जैसे एक और क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए डेफिनेशन से, यू कैन जस्ट ट्राई कि जैसे पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं, लेट्स से वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बर्नौली 1 - 1/n, है ना, या वही बर्नौली 1/n पहले लिखा था ना, तो हमने पहले बर्नौली 1/n लिखा है। सो हमने डेफिनेशन से प्रूव किया दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, डेफिनेशन से हमने प्रूव किया दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0। नाउ यू चेक क्या ये कन्वर्ज करेगी rth मीन टू 0, तो rth की वजह r को 2 रख दो, एक फिक्स कर देते हैं, सो सेकेंड मीन टू 0 या मीन स्क्वायर टू 0, ये आपको अभी चेक करना है बाय डेफिनेशन। सो अगेन दोज हु नो थ्योरम है ना विल बी इजीली, मतलब उनके लिए इजी होगा प्रूव करना ये, बट बाकी लोग जिनके लिए नया है यू कैन ट्राई। सो xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0 हमने ये प्रूव किया है बाय डेफिनेशन, xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी 0 बाय डेफिनेशन किया है, xn कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू 0 आपको ये बाय डेफिनेशन ट्राई करना है। तो इसके लिए क्या ट्राई करना पड़ेगा, तो यू नीड टू ट्राई दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ xn - 0 होल स्क्वायर, ये आपको निकालना। अगर ये 0 आ गया तो मीन्स इट इज करेक्ट, ठीक है, तो बस ट्राई करके देखो, यू सिंप्लीफाई इट, क्या ये 0 आएगा, Yes sir, limit n tends to infinity 1/n, it's 0। ये आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपली आप लिखेंगे, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन मॉड xn स्क्वायर
तो यहाँ से अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि ये आ जाएगा, अच्छा एक्सएन का सपोर्ट क्या है यहाँ पे, अगेन एक्सएन का सपोर्ट तो 0 या 1 ही है, तो नेगेटिव तो है नहीं, तो मॉड हटा सकते हैं हम लोग, बिकॉज सपोर्ट ऑफ एक्सएन इज नॉन नेगेटिव, सो वी कैन रिमूव मॉड। तो ये जस्ट आ जाएगा, अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूं, सो सपोर्ट पॉजिटिव है, सो इट विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन स्क्वायर। और ये क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अच्छा सपोर्ट क्या है, तो x अगर बर्नौली है तो एक्स एन स्क्वायर भी बर्नौली ही होगा, तो वो तो बर्नौली 1/n ही रहेगा, राइट, स्क्वायर करने पे भी, सो बर्नौली 1/n ही, तो एक्सपेक्टेशन वही आएगा 1/n ही आएगा, तो ये 0 हो गया, एंड दैट प्रूव्स दैट xn कन्वर्जेज इन सेकेंड मीन टू 0। बट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, आपसे पूछता हूँ। सो अभी के लिए मान लीजिए 4th क्वेश्चन था, लेट्स से, बाकी ऑर्डरिंग देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आई टेक xn एज बर्नौली 1/n क्यूब, ठीक। नाउ आई एम आस्किंग, पहला ऑप्शन है xn कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, दूसरा ऑप्शन है xn कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू 0, तीसरा ऑप्शन है, या ABC कर देता हूँ, xn कन्वर्जेज इन सेकेंड मीन टू 0, एंड चौथा ऑप्शन अभी ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस हमने पढ़ा नहीं है, दैट विल सी, है ना। तो अभी के लिए मैं लिख दूं xn कन्वर्जेज इन फर्स्ट मीन टू 0, फर्स्ट मीन समझ रहा, r को मैंने 1 रख दिया, जस्ट एक बार चेक कीजिए, या 2 के बजाय हम 3 रख सकते हैं यहाँ पे, आइगन 1 के बजाय मैं 3 रख देता हूँ, बेटर रहेगा। सो दैट कन्वर्जेज इन थर्ड मीन टू 0, ऐसा कीजिए। ई के लिए मैं अगर लिख दूं xn कन्वर्जेज इन फोर्थ मीन टू 0, चलो ये भी लिख दिया। तो इसी में r की वैल्यू वेरी करा रहे हैं, ये एक ही चीज़ है, r इज 2 3 4, सो 2 मतलब सेकेंड मीन, 3 मतलब थर्ड मीन, एंड 4 मतलब फोर्थ मीन। अब एक बार चेक करके बताओ विच ऑप्शंस आर ट्रू, क्या सारे ऑप्शन ट्रू आएंगे? Sir, option C is true. CD is true. ओके, सेम ही आएगा ना, वो तो सेम ही रह जाएगा। तो ये तो आई थिंक ओके, सारे ट्रू आ जाएंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ट्रू आ जाएगा, मैं थ्योरम्स लिखाऊंगा, इजीली सारे हो जाएंगे, तो अभी के लिए आई थिंक सारे ट्रू आ जाएंगे, चेक कर लो। तो ये आई थिंक इसमें सब ट्रू आएगा। अच्छा, अगर आप डेफिनेशन से चेक करो, चलो मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आगे मैं थ्योरम्स लिखाऊंगा, या अगला डेफिनेशन लिखेंगे। लेट xn बी अ रैंडम वेरिएबल विथ PMF, तो इसका PMF है आपके पास, दिस इज इसकी वैल्यू 1 होगी व्हेन x इज n, एंड या नहीं, इसमें बता रखा है कि द प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली 1/n क्यूब व्हेन x is n, and 1 minus 1/n cube when x is 0, ऐसा है, ठीक है। 0 पे 1 minus 1/n cube है। नाउ दे आर आस्किंग यू दैट कि क्या ऑप्शन ए है xn कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू 0,
ऑप्शन बी xn converges in third mean to 0, ऑप्शन डी xn converges in fourth mean to 0, ऑप्शन डी xn converges in distribution to 0। अब चेक करके बताओ। अभी आप डेफिनेशन से चेक करो, मैं थ्योरम से लिखाऊंगा फिर थ्योरम से देखेंगे, तो इससे आपको डेफिनेशन ठीक से समझ आएगा। xn converges in probability to 0। अब क्या होगा, फर्स्ट ADE सर सही। ADE, बी गलत है। ओके यस ओके, चेक कीजिए बाकी लोग। तो इसमें जस्ट डेफिनेशन लगाने हैं आपको। ADE, अच्छा एक मिनट, मैंने लेबलिंग गलत की। ABCDE, अब सही है। ABCDE, तो जस्ट आपको डेफिनेशन लगाने हैं। यू ऑल हैव टू ट्राई डेफिनेशन, डेफिनेशन से ट्राई करने हैं। A is right, B, C are wrong. ए राइट है, BC दोनों रॉन्ग है। अच्छा, फिर DE सही है, तो ADE उन्होंने बताया। अच्छा, सो अगर कन्वर्जेंस इन फर्स्ट मीन होता तभी सही होता है ना। अगर मैं R को 1 लिया होता कन्वर्जेंस इन फर्स्ट मीन, तो फर्स्ट मीन भी सही आता है ना, क्योंकि n² बनाएगा वहाँ पे, है ना, 1/n²। So A is correct, P and C wrong, sir. ओके ओके चलिए, तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी तो हो ही गया होगा, आप लोगों ने कर लिए होंगे सब लोग। तो सिंपल है ना। फर्स्ट अगर आप ट्राई कर रहे हैं, सो मीन्स यू नीड टू सी दैट xn converges in second mean to 0 if and only if limit n tends to infinity expectation xn minus 0 whole square that should be 0। अब ये चेक कर लो आप। तो ये अगर फाइंड करेंगे आप, सो इसके लिए है ना, ये चेक करना है। सो मुझे ये देखना होगा ये कितना आ रहा है। तो ये तो सिंपल है, ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड xn स्क्वायर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 0 1। तो ठीक है, पुट कर लेंगे। तो xn अगर तो सपोर्ट पॉजिटिव ही है, तो इसमें क्या ही डिफरेंस है, मॉड का कोई रोल नहीं रह जाएगा ना, बिकॉज xn इज नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल। xn इज नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, मॉड हटा दो, मॉड हटा दोगे तो एक्सपेक्टेशन xn n इंटू दिस 0 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू प्रोबेबिलिटी एट n, तो 1/n³
एंड 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, तो ये 1/n² फाइनली 0 हो गया। अभी ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अच्छा स्क्वायर था ना, सॉरी, सो आई मिस्ड स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है ना, सो x² इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, x² इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, ठीक है, तो ये आ जाएगा x² इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, तब भी 0 आएगा, बट प्रॉब्लम विल अकर इन, है ना, नेक्स्ट वन। सो व्हेन यू ट्राई बी पार्ट, so you need to find limit n tends to infinity expectation xn minus 0 whole cube। तो यहाँ से जब फाइंड करोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ xn क्यूब निकालना है। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, xn का सपोर्ट है n, सो n क्यूब इंटू प्रोबेबिलिटी एट n क्यूब, ये तो 1 आ गई, बट आना क्या चाहिए था 0, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, है ना, जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है, आना क्या चाहिए था 0, बट आया क्या 1, तो गलत हो गया, सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। अगेन फोर्थ में भी सेम प्रॉब्लम आएगी, फोर्थ में इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में चेक कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन में है ये, विल इट कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, तो हाँ आई थिंक 0 पे है ना, क्योंकि 0 यहाँ पे अगर CDF लिखोगे, व्हेन यू राइट CDF ऑफ xn, तो ये रहेगा 0 व्हेन x लेस देन 0, और 0 पे प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 1/n³ व्हेन x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन n, 1 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू n। अब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे f(xn) x में, सो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ मिलना है इन्फिनिटी, मोर देन इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, तो ये इग्नोर हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 0 और इन्फिनिटी रखेंगे 1, 0 1, सो लेस देन 0 x मोर देन, तो 0 पे इसका जंप है, सो मतलब इट इज डिजेनरेट एट 0, सो ये सही है। और आप सिमिलरली यू कैन ट्राई देयर डेफिनेशन, ये हो जाएगा, थ्योरम है तो इसीलिए, तो A D E ट्रू है, अच्छा ये ट्रू है बिकॉज ये 0 आया था, सो B C गलत है, ठीक है, सो B and C आर रॉन्ग। तो अभी आगे आते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली। सो फोर्थ वाला जो है कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, या ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस भी बोलते हैं ना, तो कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली है। तो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, a sequence xn of random variables converges in a sequence xn of random variables converges almost surely to a random variable x, है ना, सो दैट इज वी राइट xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x इफ एंड ओनली इफ। बताइए, सो आप लोग क्या जानते हैं डेफिनेशन, हमने भी 3 टाइप के कन्वर्जेंस डिफाइन किए, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, आरएथ कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन एंड ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, ठीक है, तो ये डिफाइन कर रहा हूँ ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस। सो व्हाट डू यू नो इट्स डेफिनेशन, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का क्या डेफिनेशन है ना, अक्सर बच्चों को दिक्कत ये आती है ना कि क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना, तो डिफरेंस तो है ना, आपको थोड़ा सा इसके लिए एनालिसिस में जाना पड़ता है मेजर थ्योरी में ना, तो so what definition they write, a sequence of random variable is converges almost surely to x if and only if, so एक तो ये definition है कि probability limit xn n tends to infinity x, this probability is 1, या है ना समटाइम्स आप बुक में देखोगे ऐसा भी लिखा रहता है, that is probability limit n tends to infinity xn minus x less than epsilon is 1 for all epsilon more than 0, यही है। तो अभी आप देखेंगे जो ऑलमोस्ट कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी था उसमें लिमिट बाहर था, और अभी क्या हुआ है,
लिमिट इनसाइड हो गया है, बस यही डिफरेंस है। मतलब डेफिनेशन अगर आप देखोगे, सो दिस लिमिट वाज आउटसाइड इन केस ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, अब ये इनसाइड है। और एक्चुअली ये लिमिट है क्या, लिमिट होता है ना, यहाँ पर लेस देन लिखेंगे तो लिमिट होगा, और मोर देन लिखेंगे तो लिमसुप होगा, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर। तो अगर आप देखेंगे जैसे थ्योरम्स कुछ लोग लिखते हैं, मेनली इससे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसके सपोर्ट में हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं दैट कैन बी आल्सो यूज्ड एज अ डेफिनेशन। तो कुछ थ्योरम्स हैं जिसके हेल्प से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वो थ्योरम इसी के इक्विवेलेंट है, मतलब इसी का ऑल्टरनेटिव है, दे आर नॉट जस्ट कि बाकी के हेल्प से, मतलब उसी थ्योरम इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से आप ऐसा लिख सकते हैं। सो सेम थिंग कैन बी रिटन एज, इसी को मैं इफ एंड ओनली इफ कर दूं, या तो है ना, या तो यहाँ पे ऐसे कर दूं इफ एंड ओनली इफ, या इसी में इफ एंड ओनली इफ लगा दूं, आगे आएगा। सो व्हाट दिस से, है ना, कई तरह से ऐसा लिखा जाता है कि लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी probability of event, and what is the event, event is actually xn minus x less than epsilon for all n more than equal to m, एंड यहाँ m टेंस टू इन्फिनिटी लगा हुआ है, देखो ध्यान से, तो यहाँ m टेंस टू इन्फिनिटी एंड दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, तो इसी का ऑल्टरनेटिव है, इसको ऐसा लिख दिया। तो ये क्या बोलते हैं इसको, अब क्या लिखा गया है ये, या इसका ऑल्टरनेटिव है ना, इसमें अगर मोर देन एक जीरो लगा देंगे तो वहां वैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा मोर देन अगर कर दोगे तो। बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, तो इफ यू कैन प्रूव कि तो मैं थोड़ा ऑल्टरनेटिव लिखता हूं उसका ना, ये तो डेफिनेशन है, ठीक है ना, यू कैन सी, आप लोगों को लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर का आइडिया है, लिमसुप लिमिट, उसके टर्म में भी डेफिनेशन आता है, दैट कैन बी रिटन लिमसुप लिमिट के टर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो मेनली क्वेश्चंस हम लोग इस थ्योरम से सॉल्व करते हैं ना, मैं ये लिख देता हूं कि लेट वी से xn converges almost surely to x if and only if, सीरीज के टर्म में लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, तो ये कुछ ऐसा है, summation probability mod xn minus x more than epsilon n from 1 to infinity, this should be what, this should be finite, this is finite for all epsilon more than 0, एक बार चेक करो, या this series should be convergent, तो ये थ्योरम जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होगा। मैं देखता हूँ रोहतगी वालों ने क्या लिखा है। सो इसका जो डेफिनेशन है, एक्सन बी स्ट्रिक्टली डिक्रीज, अच्छा ये तो थ्योरम है। तो मतलब हर बुक का अपना एक लैंग्वेज अपना तरीका है लिखने का, तो आप डिफरेंट बुक में देखोगे डेफिनेशन में तरीके से है। इसने लिखा है कि
xn be a sequence of random variable xn converges almost surely to x if and only if limit of xn, पहला तो यही लिखा है जो फर्स्ट ये है दूसरे तरीके से, और दूसरा कह रहा है कि xn converges to x with probability 1। सेकेंड है लिमिट सुपीरियर, देखो इसको ऐसे भी लिखा है इसने, सो दूसरे तरीके से इसने क्या लिखा है इसको, जो रोहतगी वाले बुक है, दे राइट दैट लिमिट, वही चाहिए लिमिट सुपीरियर ही है यहाँ पे, सो मोर देन में लिमिट सुपीरियर, वहाँ लिमिट इन्फीरियर होगा। सो हेयर दे राइट m टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस x मोर देन एप्साइलॉन, ठीक है, यहाँ पे लिम सुप लिख रहा है, सुप्रीमम ऑफ मॉड xn माइनस x मोर देन एप्साइलॉन, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ मॉड xn माइनस मोर देन एप्साइलॉन, जहाँ पे n मोर देन इक्वल टू m होगा, n मोर देन इक्वल टू m है, दिस शुड बी 0, तो इसी के इक्विवेलेंट लिखा है, दिस शुड बी 0 फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0, है ना, फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0, यहाँ भी फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0, दे आर ऑल इक्विवेलेंट। अच्छा एक चीज आप जानते होंगे ना, जब कोई सीरीज कन्वर्ज करती है, इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट देन लिमिट ऑफ an इज 0, यही होता है ना, बट कन्वर्ज ट्रू नहीं है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे सीक्वेंस सीरीज में ना, कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज देन लिमिट ऑफ सीक्वेंस an इज 0, और अगर लिमिट 0 तो लिमिट क्या होता है, लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर एंड दे आर इक्वल टू, है ना, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में लिमिट एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द वैल्यू एंड देन वो इक्वल आएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाला लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है, इफ यू सी केयरफुल्ली, ये जो लास्ट स्टेटमेंट को आप कंपेयर करो, यू सी द लास्ट थिंग, ये देखो एंड देन यू सी द नेक्स्ट वन, तो इसमें बोल रहा है कि इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए, ठीक है ना, तो बट ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्ज में ऐसा है, वहाँ पे इसी का तो वो लिया गया है, सीरीज कंसिडर किया गया है, इसी को मैं ऐसा लिख देता, बात वही है, फॉर ऑल, इस चीज को फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू n, सो लिमिट m टेंस दिस शुड बी 0, तो अगर ऐसा हो जाएगा ना, इफ दिस हैपेंस दिस सीरीज कन्वर्जेस, तो दिस सीरीज कन्वर्ज करेगी तो क्या होगी, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है दैट विल हैव लिमिट 0 एंड दैट इज हेयर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें हमने सीरीज लगा दिया वहां पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्वेश्चन हम इसके थ्रू सॉल्व करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन मैं अभी के लिए जस्ट आपके लिए एग्जांपल एक लिखता हूं, मान लो क्वेश्चन नंबर 6 है कि x1 x2 xn आर IID यूनिफॉर्म 0 1, और अभी तक हमने प्रूव किया है कि द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, हमने ये प्रूव किया कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, हमने ये प्रूव किया ना, कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, कन्वर्जेस इन rth मीन टू 0, ये भी आएगा, हमने 2 के लिए प्रूव किया था, यू कैन चेक फॉर rth मीन ऑल्सो, r जहाँ पॉजिटिव नंबर है, तो कन्वर्जेस इन rth मीन टू 0, अभी मुझे चेक करना है विल इट कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, दिस इज द क्वेश्चन, कि ये जो सॉरी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, सो क्वेश्चन है कि क्या फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल कन्वर्ज टू 0, तो आज मैंने बस डेफिनेशंस लिखाए हैं, अगले क्लास में बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो एक दूसरे को रिलेट करता है, और जनरली उस पर क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में, डेफिनेशन बेस्ड बहुत कम डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, CSR नेट या गेट नेट में आता है ये टॉपिक, तो गेट नेट जैम में है नहीं ये टॉपिक, सो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस नहीं है वहाँ पे, तो ये गेट नेट में आते हैं, तो डेफिनेशन लगाने की बहुत कम ही जरूरत पड़ेगी, थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जनरली, तो तो कल मैं थ्योरम्स लिखाऊंगा, कल हम लोग देखेंगे क्या रिलेशंस हैं,
सो ये प्रूव करना है मुझे, है ना, दिस आई हैव टू प्रूव। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर मैं काम करूं तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो। तो यहाँ तक ये है कि लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट सुपीरियर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सुपीरियर ऑफ xn माइनस एक्स या सुपीरियर ऑफ xn माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन, जहाँ n मोर देन इक्वल टू m है, दिस शुड बी जीरो। तो मैं ये ना प्रूव करके आई विल प्रूव दिस। सो हम अगर ये प्रूव कर देंगे तो क्या आएगा, देखो। तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि दिस सीरीज विल कन्वर्ज। अगर आपने दिखा दिया कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो आपने ये प्रूव कर दिया कि दिस हैपेंस एंड देन दिस हैपेंस, ठीक है। सो अच्छा, इसका स्टेटमेंट में देख लेता हूँ, इसमें क्या है, इफ एंड ओनली इफ में लिखा है, वन वे लिखा है। ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का ना, एक मिनट। So they have written this and they write if and only if this happens, ठीक है। अभी के लिए मैं यही कंटिन्यू करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या लिखा है लोग। तो अभी ट्राई करो आप लोग, ये प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो क्या आएगा। तो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस 0 मोर देन एप्सिलॉन, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। सो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn मोर देन एप्सिलॉन, सो समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn है ना। अच्छा, यहाँ पे xn क्यों लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ना फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और ये यूनिफॉर्म 0 1 है, सपोर्ट तो इसका 0 मॉड हटा दो, तो मॉड हटा दोगे तो आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन एप्सिलॉन। अब ये जरा कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा। तो ये अगले पेज पे करता हूँ, देखो। अरे सो दिस यू कैलकुलेट, तो यहाँ से क्या बना अभी, दिस इज सीरीज n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मिनिमम ऑफ ऑल। सो मिनिमम इज मोर देन एप्सिलॉन, इसका क्या मतलब है, टाइम भी हो गया। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑल x1 मोर देन एप्सिलॉन एंड सो ऑन xn, या डायरेक्टली यूज कर लो CDF, है ना। अगर आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, यू कैन राइट इट 1 माइनस CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट एप्सिलॉन, और ये क्या आएगा, है ना। सो क्या आंसर देगा बताओ, व्हाट विल इट गिव, क्या ये कन्वर्ज करेगी हमेशा। CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमने पहले लिख रखा है, CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट x, सो 0 व्हेन x लेस देन 0, और ये था 1 माइनस x की पावर n व्हेन x बिटवीन 0 एंड 1, 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1, ठीक। तो एप्सिलॉन अगर मोर देन 1 लोगे तो 1 माइनस 1 0, सम 0 आ जाएगा, फाइनाइटी हो जाएगी। तो 0 1 के बीच अगर रहेगा तो 1 माइनस ये बचेगी, दिस सीरीज विल रिड्यूस टू, सो मेनली ये सीरीज रिड्यूस होगी 1 माइनस एप्सिलॉन की पावर n में रिड्यूस हो जाएगी। चेक करो यहाँ से, ठीक है। एंड जब आप यहाँ पे लिमिट n टेंस टू n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सो व्हाट डू यू थिंक, दिस सीरीज विल कन्वर्ज और डाइवर्ज, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, चेक करके बताओ, है ना। सो देखो, जब एप्सिलॉन अगर 0 1 के बीच है तो ऐसा हो रहा है, अगर जैसे एप्सिलॉन है ना 0 1 के बीच मतलब कन्वर्जेंट है ना, सो दिस कन्वर्जेस, बाकी तो 0 ही आ गया ना। सो दिस इज कन्वर्जेंट बाय ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, ये ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट लगा लो ना, क्योंकि 1 माइनस एप्सिलॉन तो लेस देन 1 ही होगा हमेशा, मतलब यहाँ एप्सिलॉन में 0 1 के बीच वाला फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो 0 हो गया ना। सो इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर एप्सिलॉन मोर देन इक्वल टू 1,
और बाकी के लिए सीरीज रहेगी 1 माइनस एप्सिलॉन की पावर n। तो बट दिस सीरीज विल कन्वर्ज, है ना, सो दिस सीरीज विल कन्वर्ज फॉर ऑल एप्सिलॉन। तो मैं ये बोलना चाहूँ दिस सीरीज विल कन्वर्ज, और जो कि एक कन्वर्जेंट सीरीज है, दिस फॉर एप्सिलॉन बिटवीन 0 एंड 1, एप्सिलॉन बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ से आ जाएगा, तो इसका मतलब दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज एंड देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करूंगा, है ना। सो कल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस पे। अभी जस्ट हमने डेफिनेशन लिखा था, आज की क्लास में जितने भी मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस है उसका डेफिनेशन लिखा, कल भी लिखा था हमने, आज भी लिखे हैं। कल अभी ये कंटिन्यू होगा, तो कल हम लोग एक बार कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे एंड देन विल सी रिलेशंस, ठीक है। तो अभी मैं यहीं स्टॉप करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है नेक्स्ट बैच का ना, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू, कल इसको कंटिन्यू करूंगा।